Okay, so up to the previous class, we have seen different type of signals and different times of systems. So we will start with the that was for calculation of DFT of any discrete time signal, and we will see like how DFT of a discrete time signal can be calculated. Along with that, we will be seeing some other methods also, that how we can calculate the same DFT by other method, and that will be the improved method. Okay, so we will start with the DFT. So before going for DFT, how that DFT have been derived, we will see that first. So in our class, the DFT we will be going through, okay, the discrete time Fourier transform. Before that, we will take an overview of DTFT. That is, what is discrete time Fourier transform. So before going for DFT, we will see DTFT. So DTFT is similar to the DFT calculation. That is, basically what we are doing is we are going for a time domain signal representation to a frequency domain representation. So any signal is there. Okay. So what we are going is we are uh, converting. Okay. So this method is your transform, and this transform can be of any type, like it can be Fourier transform, or even in Laplace transform also. It also converts the time domain signal to a frequency domain signal. Even the Z transform is similar to this. There are the different methods to transform a time domain signal to a frequency domain signal. So why we are going for this conversion, like transforming a time domain signal to a frequency domain signal? So here the basic motive of this conversion is simplicity. Like if time domain signal is there, if we are going for analysis of this time domain signal and analysis, it is very, you can say, complex to have an analysis of this time domain signal. But if we have converted this time domain signal into a frequency domain signal, this frequency domain signal becomes easy to analyze. Okay, and it is easy to perform different operations. You can easily perform operations, or you can say the mathematical operations. Okay, so if we are able to perform mathematical operations, and this is the only motive, that by using a signal we will be performing some mathematical operations, and that will be consist of a system. Okay, this will be a system, and finally we will be getting some output. Okay, so this is the complete motive of our signal processing. Okay, so we should be having a signal, that signal should be processed, and we will be getting some desired output. So for getting a desired output, whatever mathematical operations we are going to perform, that mathematical operation is basically should be such that it should be taking minimum time, or it should be having requirement of minimum hardware. So that can be analyzed easily by using the Fourier transform, or by using the converted signal, a time domain signal converted to Fourier frequency domain signal. That signal can easily be analyzed. So that's why we are going for either DTFT or any type of uh, frequency domain conversion method. Okay, so this DTFT is discrete time Fourier transform. So in DTFT, and discrete type signal x of n is being converted to a Fourier transform that is of continuous time. So this is discrete time, and this will be
in continuous, this is discrete time, or you can say discrete signal. This is discrete signal, and this will be a continuous time signal. This will be not continuous time, it will be continuous in frequency. Okay, that means if we are going for conversion, it is discrete time, it is discrete in nature, but the obtained value after transform, okay, after transform, this obtained function or signal will be a continuous in nature. Okay, so this is the basic understanding in case of DTFT. And this DTFT is calculated for infinite duration of sequences. Like any sequence is there. Okay, so u of n, we have seen what is u of n. So what happens in u of n? When n is either 0 or greater than 0, the u of n value will be 1. Okay, so this was the signal. This goes to infinity. Okay, this is u of n. This will be 0, 1, 2, 3, 4, up to n. Sorry, up to infinity it will go. So this is a discrete time sequence having infinite duration. So this is defined for infinite duration. Okay, so if we are going for conversion of this infinite sequence signal to its frequency transform by using a frequency transform, this will be called a discrete time Fourier transform. Okay, so this was DTFT. So once we are considering any discrete time sequence that is having infinite duration, that is defined for infinite time, its conversion to frequency will be called DTFT. Okay, but the other term that we will be studying is discrete Fourier transform. So this discrete Fourier transform, in that discrete Fourier transform, the sequence, the input sequence we will be using for frequency conversion, that should be having finite duration. So what does it mean? Like we have taken the example, if this is the sequence n and this is u of n. Okay, so but in case of this, the sequence, the input sequence should be having a finite duration. So we will be defining this u of n for a finite duration. Suppose 1, 0, 1, 2, 3. Suppose up to here we have taken. So this example we have taken. So in that it was going up to infinity. So what we will do, we will sample it. We will take only a sample of this, not the infinite one. We will make it a finite sequence. So if we will be taking 0, 1 to up to 2 and 3 sequence, like here we have taken, means 1, 2, 3, 4, total 4 sequences we will be taking. So if we are taking only a finite sequence out of the infinite sequence of un, okay, so we have taken only this as the input signal, and then we will be performing the Fourier transform. Then whatever Fourier transform we will be getting, it is represented in form of x of k. Okay, and this x of k will also be a discrete one. Okay, it will also be a discrete sequence. So in DTFT, so if this type of conversion is there, this will be called your DTFT. Okay. Means a discrete sequence was there, not only discrete, finite discrete sequence. Okay, a finite discrete sequence is being converted by using a frequency transform or Fourier transform to obtain a signal. Again a signal will be obtained. This will also be a discrete sequence, and this discrete sequence will be a finite discrete sequence. Okay, then this conversion will be called your d this conversion will be called DFT. correct. ठीक है? एक तो ये रिकॉर्ड करने का ऑप्शन क्यों नहीं देते हैं? टर्न ऑफ Hello. इनकम. Yes,
मेंबर someone's mic is न्यू में, अब इनको भी बोलूँ 2 दिन 3 दिन तक कि मेंबर बनाओ, hello इन्हों की टीम ही नहीं बनाई है। hello make sure your mic is turned off, okay, otherwise I will be turning it off. yes, किसी ने रेज हैंड किया है, राय कुछ पूछना है? okay, so we will be going with the content. ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया? यार मेन मोटिव ये था कि आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना कि लाइक डीटीएफटी और डीएफटी में डिफरेंस क्या है। तो डीटीएफटी में क्या डिफरेंस था? इन डीटीएफटी जो भी सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा एंड दैट विल बी ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस, दैट विल बी ऑफ हैविंग इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस सिग्नल को, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड वी विल बी गेटिंग एक्स ऑफ ओमेगा, and this x of omega signal will be in continuous in nature and that will also be on infinite sequence. It will be defined for infinite frequency. Okay, so infinite sequence was there, it was converted by using a Fourier transform and we are getting instead of discrete we will be getting continuous time signal and in terms of frequency, and frequency should be ranging from minus infinity to infinity. So this conversion will be called DTFT. Okay, and in case of DFT we will be taking, instead of this infinite sequence signal, we will be taking a finite discrete time signal. Okay, means we will be sampling, or sampling of we will be making a window, we will be making a finite out of infinite signal by some method, and this finite sequence will be transformed and finally we will be getting a sequence that will be of discrete in nature, that will be discrete, along with it will be having a finite number of sequences only. Okay, so this was the basic understanding. We will go further for more clear analysis. Okay, so this one is the definition of discrete time Fourier transform. So any signal like x of n is given, and if we want to calculate the DTFT of x of n, then this is the formula that we need to follow. Okay, so we will be having x of n summation of x of n into e to the power minus j omega n. Okay, and here n should be ranging from minus infinity to plus infinity. Okay, so this will be our DTFT, and this DTFT value will be represented by x of omega. ठीक है, तो अगर हमारा कोई सीक्वेंस है x ऑफ n, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा, जैसे यहाँ पे n के वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा सीक्वेंस। सिमिलरली आफ्टर कैलकुलेटिंग द DTFT, जो हमारा सीक्वेंस बनेगा दैट विल बी इन कॉन्टिन्यूअस इन नेचर एंड हैविंग ओमेगा एज द वेरिएबल, ओमेगा जो होगा वो वेरिएबल होगा। ओके, बेस्ड ऑन दैट ये जो हमारा DTFT होगा दैट शुड बी द वेरिंग। सिमिलरली अगर हमने DTFT फाइंड आउट कर लिया है, अगर हमें उसको इनवर्स DTFT फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फार्मूला है आफ्टर गेटिंग द इनवर्स वी विल बी गेटिंग अगेन द x ऑफ n, so x of n will be equals to IDTFT of x of omega, whatever we have DTFT by DTFT function, that will be equals to 1 by 2 pi, and it should be ranging from minus pi to pi x of omega e to the power j omega n into d omega. So this is the formula for calculating the IDFT. So why we have used summation here and why we have used integration here? So here in the first case we are using the summation. So any signal is there that is of discrete in nature, we will be using summation to find out like sum of all the sequences for different value of independent variable n.
बट सिमिलरली अगर हमें कोई भी सिग्नल है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है, ठीक है, ये हमारा डिस्क्रीट इन नेचर था इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे समेशन। सिमिलरली अगर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है और हम हर सिग्नल के हर एक वैल्यू पे वैल्यू फाइंड आउट करके उसको ऐड करना चाहते हैं, दैट विल बी गिवन बाय योर इंटीग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट द sequence x of n, ठीक है। So this is the method, this is the formula for DTFT and IDFT, DTFT, okay। तो एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ये फार्मूला क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें बेसिकली अगर हमें x ऑफ n दिया है तो हम डायरेक्ट इस x ऑफ n को इस फार्मूले में रख करके इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, वट एवर वैल्यू वी विल बी गेटिंग दैट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा, वो ओमेगा का फंक्शन होगा। दैट्स वाई जो भी होगा ये स्मॉल x से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिग्नल को, टाइम डोमेन सिग्नल को। अगर आफ्टर फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन जो हमारा x ऑफ n था, दैट मीन्स x जो है स्मॉल में रिप्रेजेंट किया गया था, जब यहाँ पे हम आफ्टर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है, वो क्या होगा, कैपिटल एक्स के फॉर्म होगा। अगर सपोज एफ ऑफ एन कोई सिग्नल है, इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करें तो इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगा कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा होगा, ठीक है। ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं, ठीक है, आफ्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म दिस विल बी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सेम अगर कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा दिया हुआ है, इसका मतलब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इसका जब हम आईडीएफटी कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी हैविंग अ डिपेंडेंस ऑन n वेरिएबल एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स, ओके, ठीक है। जो ओरिजिनल सीक्वेंस जो होगा वो टाइम डोमेन सिग्नल होगा, तो ये हम स्मॉल एक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, जनरली हम यूज करेंगे और ये आगे भी यूज होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कौन सा इनपुट सिग्नल है और कौन सा फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन सिग्नल है और कौन सा फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है, ठीक है। तो बाय यूजिंग द रिप्रेजेंटेशन ओनली वी कैन फाइंड आउट वेदर इट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन सिग्नल। So we will be taking an example. Suppose x of n is a function represented by this sequence, okay. So this sequence is varying up to infinity, so it is going up to infinity, and this here it is going to minus infinity. So x of n is defined in between plus infinity and minus infinity by some samples, its magnitude could be anything, okay. And after conversion, after converting by DTFT, The graph is not visible. the graph is not. Is there the same problem with other also? Yes, sir. ग्राफ नहीं दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? किसी को और को दिख रहा है आपका? दिख रहा है सर। ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा है एक बार क्या करो आप, No, sir. डिस्कनेक्ट करके। हाँ, नहीं दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा। आप ऐसा कर सकते हो कि वीडियो अगर ऑन है आपका तो वीडियो आप ऑफ कर लो, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आई थिंक क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कर देता हूँ। अब ठीक है, मैंने अगेन डिस्कनेक्ट करके उसको फिर से कनेक्ट किया हुआ है। अगर कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोग हेलो। Yes, sir, it is visible. Okay, so if it is not visible, that is because of the network issue, okay. If it is not visible, the PPT is not visible, that could be because of the network issue, okay. So make sure your video is off. Okay, so we will proceed further. So this is our sequence. This is just for understanding that how it is being converted to time domain and frequency. We will be taking some example, a real time example in case of DTFT that we will be studying, okay. So this is just for an understanding, like input signal जो हमने लिया है वो discrete in nature है, ठीक है।
क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, टाइम सीक्वेंस, टाइम स्टेप के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है, अदरवाइज इट इज 0 है। सो ये क्या है, ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा दैट विल बी DTFT, दैट विल बी इन कॉन्टिन्यूअस नेचर। कॉन्टिन्यूअस नेचर का ये सिग्नल है, ठीक है। दिस सिग्नल इज ऑफ कॉन्टिन्यूअस नेचर, मीन्स टाइम पीरियड हम कुछ भी लेंगे that is defined for all time periods, in between this also that is defined for all time period, so it is of continuous time और कुछ से continuous frequency in nature, ठीक है। ये क्या था, ये discrete time signal था, after conversion it will be continuous in frequency, तो obtained जो वैल्यू हमारा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में continuous फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा मोटिव था इस ग्राफ के थ्रू दिखाने का। और साथ में एक और पॉइंट कि आफ्टर कन्वर्जन जो भी सीक्वेंस है आफ्टर कन्वर्जन जो हमें DTFT फाइंड आउट होगा दैट विल बी अ पीरियोडिक सिग्नल। वो क्या होगा, ये क्या होगा, एक पीरियोडिक सिग्नल होगा। तो पीरियोडिक सिग्नल का मतलब वो सिग्नल जो कि अगेन एंड अगेन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो यहाँ से हमें पीरियड फाइंड आउट हो जाएगा। तो पीरियड जो होगा इस वाले सीक्वेंस का, क्योंकि इसका जो पीरियड होगा दैट ऑलवेज विल बी इन द फॉर्म ऑफ पाई टू माइनस पाई, दैट मीन्स पाई से माइनस पाई का मतलब पीरियड, टोटल पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई, ओके। So make sure everyone is having your mic turned off, okay, otherwise the disturbance will be there. तो माइक अपना आप ऑफ कर लो, ठीक है। सो दिस वाज द DTFT, जो कि हमें पढ़ना नहीं है, हम बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि हमारा DFT कैसे फाइंड आउट हुआ विद रिस्पेक्ट टू DTFT। तो DTFT हम फाइंड करने का ये मेथड है। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ टर्म्स ऑब्जर्व करेंगे कि इससे क्या हमें फाइंडिंग्स क्या मिली, ठीक है। तो फाइंडिंग्स ये है कि इन द DFT ऑफ x ऑफ n इज अ पीरियोडिक विद द पीरियड ऑफ 2 पाई। तो यहाँ से हमें ये समझ में आएगा दैट DTFT that is x of omega will always be a periodic sequence, a signal that will be having a period of 2 pi, okay. And the frequency omega, here the frequency omega that we will be seeing like this one omega is, this is the omega frequency, this is called your digital frequency, okay. So we will see what is digital frequency is basically, okay. So it is digital frequency and that should be limited for the interval minus pi to plus pi, okay. This is the digital frequency. So recall that the digital frequency omega is a normalized frequency relative to the sampling frequency and defined by this. So हम एक एग्जांपल देखेंगे कि क्या है ये बेसिकली। तो हमारा कोई सीक्वेंस था जिसको हमने सैंपल किया, ठीक है। तो जो भी ये हमारा सिग्नल था इसको हमने सैंपल किया, तो सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी इस सिग्नल की, इसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड होगा, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, सपोज दिस फ्रीक्वेंसी इज एफ, ओके। सॉरी, हम एग्जाम्पल लेंगे दूसरा, ठीक है। होता क्या है, कोई भी हम डिजिटल और से डिस्क्रीट सिग्नल, अगर हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एनालॉग सिग्नल होता है। सपोज ये हमारा कोई सिग्नल है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस इन नेचर है, ये एनालॉग सिग्नल है एक्स ऑफ टी सपोज। तो इसको हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है हमें एक्स ऑफ एन में। तो हम क्या करते हैं, इसको सैंपल करते हैं, ठीक है। एक फिक्स इंटरवल के बाद सपोज इसका सैंपलिंग टाइम पीरियड जो है ये जो है टी के फॉर्म में होगा। सपोज इसको हम सैंपल करने के बाद हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलेगा एक्स ऑफ एन। तो सपोज इसका सैंपलिंग टाइम टी एस है, ठीक है। दैट मीन्स अगर टी एस अगर ये है तो आफ्टर दैट मच ऑफ टाइम वी विल बी टेकिंग सम सैंपल्स, ठीक है। समझा। फिर इसको हम सैंपल करने के बाद जो भी आएगा हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आफ्टर टी, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। सपोज दिस इज आवर सिग्नल एंड अगेन दिस वे ऑल्सो, सो दैट कि टी एस की जो प्रॉपर्टी है वो हमें समझ में आए।
तो कैसे एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरेट होता है एनालॉग सिग्नल से या कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल से, वी विल बी टेकिंग. सो सपोज दिस स्टेप, ईच स्टेप इज डिफाइंड बाय अ टीएस. ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस था, उसको हम सैंपल कर रहे हैं टीएस सैंपलिंग टाइम से. सो आफ्टर टीएस टाइम वी विल बी टेकिंग सम सैंपल. तो सपोज पहला टीएस जो होगा वो यहाँ पे है, उस टाइम पे वैल्यू जो होगी वो ये होगी. जो दूसरा टीएस होगा यहाँ पे वैल्यू ये है, थर्ड पे ये है. ठीक है, फोर्थ पे यहाँ पे वैल्यू आ रही है, फिफ्थ पे यहाँ पे आ रही है, फिर सिक्स पे क्या वैल्यू आ रही है, नीचे आ रही है. ठीक है, फिर सेवन पे इस तरह से ये वैल्यू जनरेट होगा. ठीक है, अगेन सैंपलिंग करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, सैंपलिंग करने के बाद ऐसा हमें कुछ वैल्यू मिलेगा. ठीक है, तो ये होगा हमारा सैंपल. ओके, one time step that is sampling we have taken is ts time. Okay, so this is the after taking sampling, after doing sampling of analog signal, जो भी continuous time signal है उसको हम sample किए. that sampled signal will be in the form of x of n, that will be a digital signal. so suppose यहाँ पे जो हमारी frequency थी वो f थी. ओके, एनालॉग जो भी हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ थी. ठीक है, और इसको हम सैंपल कर रहे हैं कितने टाइम से, टी एस सैंपल टाइम से. तो इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें तो एफ एस जो होगा दैट विल बी 1/ts. ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हो गई. एफ एस जो हो गया वो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, और एफ जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है. तो एक सिग्नल जो है यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक जो है एक टाइम पीरियड हो गया, तो ये टाइम पीरियड होगा टी. तो एफ, कैपिटल एफ जो होगा वो क्या होगा 1/t. सो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, एंड दिस एफ एस विल बी अ सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सी टी जो हमारा है, जो टाइम पीरियड है, दैट विल बी ऑफ लार्जर वैल्यू, एंड सैंपलिंग टाइम विल बी ऑफ स्मॉलर वैल्यू. जो सैंपलिंग टाइम स्मॉलर होगा तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा. एफ ऑफ एस विल बी हायर देन एफ ऑफ, ठीक है, जो भी हमारा एफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी है दैट विल ऑलवेज बी लोअर देन एफ ऑफ एस सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी से. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा सैंपलिंग. सैंपलिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं. उसके बाद अगेन हमें एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिल रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. ओके, and that will be in the form of some omega. So this omega, this will be a function of omega. So this omega is known as your digital frequency. So this digital frequency is represented by this function. So this function will be represented by 2 pi. F is the frequency of your continuous time signal. This one, this signal that we have obtained, from which we have obtained the discrete sequence. Okay, and this f of s will be your sampling frequency. ठीक है, so ये वैल्यू होगी हमारी ओमेगा की वैल्यू. समझ में आ रहा है यहाँ पे. so this omega value will be given by 2 pi f, whatever frequency एक टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी है, that will be f divided by f of s, the sampling frequency. ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. ये बेसिकली आगे भी हम और क्लियर करेंगे इसको. ठीक है, so one time period will be defined by the same in which it is varying from pi to minus pi to pi. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है DTFT का. तो x of n कोई सिग्नल है that is represented by this. So that will be a sequence, but it will be a sequence of defined by this. If this is the defined the sequence, it is called a rectangular sequence. ठीक है, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर सीक्वेंस है जो कि डिफाइंड है अप टू -∞ से +∞ तक. ठीक है, इसका अगर हम DTFT फाइंड आउट करें तो इट विल बी, अब DTFT जो फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, दैट विल बी कंटिन्यूस फंक्शन. तो इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं और एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो सभी जितने भी, अगर ये नीचे भी था तो इसको जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा. ठीक है, तो सभी
इस तरीके का सीक्वेंस आएगा। अब इसका सम फेज आएगा कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है तो उसमें फेज की वैल्यू क्या है, फिर आगे फ्रीक्वेंसी क्या है तो उसमें फेज की वैल्यू क्या है, ये एक पैटर्न एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है। तो इसको अगर हम ये हमारा जो ग्राफ है ये ऑब्टेन कहाँ से हुआ, ये ऑब्टेन होगा आफ्टर फाइंडिंग आउट द DTFT। जब DTFT हम फाइंड आउट कर लेंगे वहाँ से हमें ऑब्टेन होगा। तो DTFT इज गिवन बाई x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, फार्मूला हमने पीछे देखा हुआ है, समेशन इट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू, फार्मूला जो था हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था, ठीक है। एक बार देखते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे फार्मूला था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था, लेकिन हमने इसको 0 से n-1 कर दिया। क्यों? क्योंकि बाकी के जो सीक्वेंसेज हैं इनपुट के वो सब 0 हैं, ये सब 0 हैं, तो इन सबको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कहाँ पे वो पॉजिटिव है या फिर कहाँ पे उसका 0 नहीं है। दैट इज फॉर द रेंज 0 to n-1। 0 to n-1 में 0 नहीं है तो हम उसको केवल 0 से n-1 ले लिया। दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई e टू द पावर, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा n सॉरी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस था, x ऑफ n, तो x ऑफ n वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो 1 इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा बचा, j ओमेगा n। तो दैट विल बी समेशन ऑफ 0 to n-1, 1 इंटू 1 इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये फंक्शन मिलेगा, और इसको हम फर्दर डिकम्पोज करेंगे तो वी विल बी गेटिंग दिस सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस से हमें ये कैसे मिला, कोई बता सकता है इस सीक्वेंस से हमें ये कैसे मिला? यस, okay, so what, how this we have obtained from there the there। तो एक हमने पढ़ा था सीक्वेंस, दैट इज यूलर्स आइडेंटिटी, e टू द पावर j थीटा अगर है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय cos थीटा प्लस j sin थीटा, ठीक है, हमने ये पढ़ा था एक, ओके। सिमिलरली अगर हम इसको e टू द पावर माइनस j थीटा अगर लिखें तो दैट विल बी cos थीटा माइनस j sin थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे e टू द पावर j थीटा माइनस e टू द पावर माइनस j थीटा। अगर हम इस वाले में से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो इट विल बी दिस माइनस दिस, तो ये थीटा कॉस थीटा माइनस हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 2j साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है सपोज साइन थीटा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर j थीटा माइनस e टू द पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाई 2j, ठीक है। यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। सिमिलर हमें एक्सप्रेशन यहाँ पे फाइंड करना है, क्या है 1 माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा n है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इसका हाफ से इसकी हाफ वैल्यू से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मतलब ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में, दैट मीन्स वी विल बी टेकिंग लाइक e टू द पावर माइनस j ओमेगा n डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये अगर हम ऊपर में कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, e टू द पावर j ओमेगा कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2, ये बचा यहाँ पे, फिर माइनस, क्योंकि इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर 0 आएगा, दैट विल बी 1। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों ऐड होकर के 0 हो जाएंगे, तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, दैट विल बी 1 अगेन e टू द पावर। अब इस वैल्यू e टू पावर माइनस j ओमेगा n में से माइनस j ओमेगा n बाई 2 अगर हम बाहर कर लें तो इट विल बी रिमेन माइनस j ओमेगा n बाई 2, ठीक है। ये ऊपर वाला सीक्वेंस सही है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेम यही वैल्यू मिल जाएगी जो यहाँ पे ऊपर में है, ठीक है। जो भी ये वैल्यू ऊपर में है सेम यही वैल्यू मिल जाएगी।
सिमिलर डिवाइड करेंगे हम नीचे में, इसको भी सेम वैसे ही कर देंगे। सो इट विल बी e टू द पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2, यहाँ पे e टू द पावर माइनस सॉरी प्लस जे ओमेगा बाई 2 माइनस e टू द पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2। ठीक है, दोनों सेम हो गया। यही जो हमारा ये फंक्शन था वही सेम आ गया। ये फंक्शन कहाँ से आया, इसको हम समेशन करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n डिवाइड बाई 2 एंड दिस वन इज e टू द पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस जे अगर हम कॉमन ले लें फिर दैट विल बी n minus 1, this will be 1 divided by 2, n minus 1 divided by 2. So after dividing these two we will be getting this function. Okay, and जो ऊपर का ये पार्ट है और नीचे का ये पार्ट है, तो ऊपर का जो ये पार्ट है, ठीक है, that will be obtained like this equation. तो यहाँ पे क्या है, e to the power j थीटा माइनस e to the power माइनस j थीटा, इसको j को हम यहाँ पे डायरेक्ट 2j कर दें। ठीक है, तो आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस, इसका एक्सप्रेशन जो होगा दैट विल बी e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इनटू ऊपर का जो सीक्वेंस है e टू द पावर दिस वैल्यू इज j थीटा माइनस e टू द पावर माइनस j थीटा। ओके, इट इज समवॉट दिस वन, ऐसा कुछ फंक्शन है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 2j साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा n बाई 2। ठीक है, सिमिलरली जो डिनोमिनेटर का पार्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2j साइन ओमेगा बाई 2। ठीक है, और ये 2j एंड 2j कट जाएंगे और फिर हमें सेम यही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें कोई सीक्वेंस ये दिया हुआ है एक्स ऑफ एन, तो उसको हम DTFT फाइंड आउट करेंगे, और जो उसका DTFT का फार्मूला है, जो फार्मूला है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी दिस, और साइन ओमेगा n बाई 2 डिवाइड बाई साइन ओमेगा n, जो ये फंक्शन है इसको हम बोलते हैं सिंक फंक्शन। तो हम इतनी की बात करें तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड योर सिंक फंक्शन, एंड इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा आएगा। ठीक है, तो सिंक फंक्शन का जो बेसिक ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, इट विल बी हैविंग मैक्सिमम एट 0 एंड देन इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। ठीक है, ऐसा रिड्यूस होगा। दिस इज योर सिंक फंक्शन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई भी वेरिएबल f इस तरीके से होगा। ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो जो भी नीचे का पार्ट है मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो वही रिप्रेजेंटेशन है, ये मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सिंक फंक्शन का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, तो जो भी नीचे का पार्ट है वो सब ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, तो सभी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगे। ठीक, so this is the method that how we can proceed. So this is only for DTFT. A similar analysis will be for DFT also. So ये एक ओवरव्यू हमने दिया। So ये जो यूलर्स आइडेंटिटी था और ये जो सिंक फंक्शन है, ये आपको फ्रिक्वेंटली यूज होंगे आगे भी। तो एक बार आप सिंक फंक्शन को एज ए होमवर्क आप एक बार पढ़िएगा। ठीक है, उसके बारे में समझिएगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, अब इसको फाइंड आउट करना। सिंक फंक्शन होता क्या है, उसका ग्राफ कैसे होता है, उसका फेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो वी विल सी प्रोसीड फर्दर। So this one is another example only for DTFT, like x of n is sequence and it is cos function, similar to cos function, but it is of this discrete nature. Okay, it is defined only for discrete times. So its function is x of n is equal to a cos omega naught n plus
alpha. Alpha is a phase. So instead of 0, it is having some phase, some shifted value. So this is your alpha, that is phase. This is the sequence after converting the DTFT, after performing the DTFT, we will be getting a sequence, and this sequence will be in the form of frequency. Okay, ये क्या होगा, एक frequency के form में होगा, और हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी द इन टर्म्स ऑफ ओनली इम्पल्सेस. तो अगर हम इसको फार्मूला लगाएंगे एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड आउट करेंगे इसका बाय यूजिंग समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x of n that will be e to the power minus j omega n. So this is the formula for your DTFT calculation. और हम इसको x of n को रिप्लेस करेंगे इस फंक्शन से, और उसके बाद हम इसको फाइंड आउट करेंगे. तो हमें ऑब्टेन जो होगा that will be obtained is a function x of omega that will be in terms of delta omega minus omega naught. This delta is your what function it is? This is impulse function. हमने ये पढ़ा हुआ है कि what is impulse function. तो delta omega minus omega naught. So अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पे अगेन it will be in terms of delta omega plus omega naught. ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करें डेल्टा विल बी इम्पल्स फंक्शन. इम्पल्स कहाँ पे डिफाइंड होता है? इसके अंदर जिस फंक्शन में है वट एवर वैल्यू है, इसको हम ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट को 0 के बराबर करेंगे. तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस ओमेगा नॉट. इसका मतलब एक इम्पल्स होगा एट ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट. माइनस इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट माइनस ओमेगा नॉट जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे एक इम्पल्स आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये इसका मैग्नीट्यूड होगा. ठीक है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा. सिमिलरली अगर ये है हम इसको 0 करेंगे तो इट विल बी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 0. तो ओमेगा विल बी ओमेगा नॉट. तो एट ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी एक सैंपल होगा दैट इज इम्पल्स, एंड इस मैग्नीट्यूड विल बी दिस वन. तो इसके मैग्नीट्यूड जो है ये होगा. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी DTFT जो हमें ऑब्टेन्ड हो गया है उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. और इसका फेज भी हम फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. जो भी रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हैं बेस्ड ऑन दैट हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो अप टू दिस दैट वाज द DTFT. लेकिन हमें इस फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है? हमें फर्स्ट यूनिट में बेसिकली पढ़ना है DFT. ठीक है, सो वो एक मेथड था DTFT फाइंड आउट करने का. बट DFT फाइंडिंग का जो मेथड है वो बहुत ही ईजी है. ठीक है, अगर आपको अभी तक थोड़ा टफ लगा हो तो उसको भूल जाओ एक तरीके से. वो बिल्कुल भी टफ नहीं है हमारा DTFT. DTFT में क्या है कि हमारे पास जैसे कि हमने पढ़ा फाइनाइट सीक्वेंस होना चाहिए. तो फाइनाइट सीक्वेंस होना चाहिए. सपोज कोई फंक्शन है x ऑफ n. तो फाइनाइट सीक्वेंस हम उसको सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एक ब्रैकेट में. ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे 0 2 8 7. सपोज ये इतने सीक्वेंस है. तो कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब अगर वो फाइनाइट है तो इसका मतलब उसके फिक्स्ड सैंपल्स होंगे. तो यहाँ पे कितने सैंपल्स हैं? तो यहाँ पे 4 सैंपल्स हैं, 0 2 8 एंड 7. अगर इस तरीके से कोई सिग्नल डिफाइंड है तो हम ये सपोज करते हैं कि जो फर्स्ट सीक्वेंस है दिस वन इज एट n इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हम सपोज करते हैं कि अगर ये पहला जो सीक्वेंस है वो n इक्वल टू 0 पे है. तो हम इसका जब प्लॉटिंग करेंगे आफ्टर प्लॉट, तो x ऑफ n को अगर हम प्लॉट करेंगे दैट विल बी प्लॉटेड एज एट 0 इट इज ऑफ 0, एट 1 एट 2 एट 3. दिस इज n. तो एट 1 2 वैल्यू विल बी देयर. तो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? वो 2 होगी. तो दिस विल बी योर 2. एट 2 वैल्यू द वैल्यू विल बी 8. ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी वो 8 होगा. एंड एट 3 द वैल्यू विल बी 7. ठीक है, ये है किसी भी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को प्लॉट करने का तरीका. ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ दिस. और उसको हम प्लॉटिंग करेंगे तो हम इस तरीके से प्लॉट करेंगे. सपोज कोई सीक्वेंस है x ऑफ n एंड इट इज डिफाइंड बाई 1 2 4 3. सपोज ये कोई सीक्वेंस है और हमें ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये
पहला जो टर्म है वो n इक्वल्स टू 0 के लिए डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना देकर के वो यहाँ पे अगर एरो लगा हुआ है, एक एरो लगा के ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको अगर प्लॉट करने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एरो लगा है दैट इज डिफाइनिंग योर n इक्वल्स टू 0 सीक्वेंस, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब n इक्वल्स टू 0 प्लॉट करेंगे तो दैट विल बी डिफाइंड एज द वैल्यू 4, ठीक है। तो ये होगा 4, फिर n इक्वल्स टू 1, तो ये जो होगा ये सीक्वेंस वो डिफाइंड होगा n इक्वल्स टू 1 के लिए, ये जो होगा वो डिफाइंड होगा n इक्वल्स टू -1 के लिए, ये जो होगा वो डिफाइंड होगा n इक्वल्स टू -2 के लिए, ठीक है। तो 1 फिर -1 दिस इज -2, तो दिस सीक्वेंस विल बी 4 हो गया 0 पे, तो 3 हो जाएगा 1 पे, और -1 पे सीक्वेंस जो आएगा वो होगा प्लस का 2 and at n equals to -2 the sequence will be 1, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा। इसमें किसी को डाउट है? ये बेसिक है, वो साथ में मैंने बता दिया इसको, ठीक है। वो आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, आगे के क्वेश्चंस में आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक हमने एग्जांपल लेकर के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली अगर वो सीक्वेंस का जो है वो हमें तो यहाँ दिख रहा है कि सीक्वेंस कितने सीक्वेंस है, 4 सीक्वेंस है, ठीक है। तो 4 सीक्वेंस है, तो पहला सीक्वेंस स्टार्टिंग विद n इक्वल्स टू 0, दूसरा n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। अगर टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस अगर 4 है, तो हम जो फाइनल जो लास्ट होगा उसका जो सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी n-1। so this will be here at the last one sequence will be n value will be n capital N total sequence -1, ठीक है। और सिमिलरली जो पहला सबसे पहला होगा दैट विल बी the first one, so that will be represented by 0, ठीक है। just wait for a minute. Okay, so this was the sequence, our finite sequence that will be having samples like x of 0, x of 1, x of 2 up to x of n-1, ठीक है। और टोटल सीक्वेंस इसमें कितने हो गए, टोटल सीक्वेंस विल बी कैपिटल N, क्योंकि लास्ट जो सीक्वेंस है वो वेरी कर रहा है n-1 पे। तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस स्टार्टिंग विद 0 अप टू n-1 विल बी n, ठीक है। तो टोटल कैपिटल N सीक्वेंस है। इसको अगर हम डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल आल्सो बी अ डिस्क्रीट सीक्वेंस, ओके। वो भी एक डिस्क्रीट सीक्वेंस होगा, और उसका दिस सीक्वेंस में जो सैंपल्स होंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी स्टार्टिंग विद 0 अप टू कैपिटल n-1, ठीक है। मतलब इसमें भी हमारे जो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे दैट विल बी ए कैपिटल N ओनली। तो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज DTFT में जो हमारे सैंपल्स होंगे, इनपुट सैंपल्स अगर n नंबर्स के हैं, तो आउटपुट जो हमारा DFT होगा आउटपुट, उसमें भी n नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे, कैपिटल N नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। उसमें भी स्टार्टिंग विद 0 अप टू n-1 इट विल गो, ठीक है। और x ऑफ k, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस है x ऑफ n, अगर हम फाइंड आउट करते हैं इसका DFT, तो जो ऑब्टेन्ड सीक्वेंस होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय x ऑफ k, ठीक है। x ऑफ k से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे n जो होगा वो वेरी करेगा 0 से n-1 फॉर n सैंपल्ड सीक्वेंस, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ सैंपल्स हैं इस फाइनाइट डिस्क्रीट सैंपल में, तो उसके जो उसमें n की जो वेरिएशन होगी वो 0 से लेकर के n-1 तक होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे DFT, तो DFT जो होगा रिप्रेजेंटेड बाय इन द टर्म्स ऑफ x ऑफ k, एंड हियर k विल बी वेरिंग फ्रॉम अगेन 0 टू द सेम n-1, that means it will also be a n sampled sequence will be there, ठीक है। जो हमारा DFT फाइंड ऑब्टेन्ड होगा
by calculating DFT, the same number of samples will be there. और DFT फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है, उससे पहले जो हमने देखा है वो फार्मूला था DTFT कैलकुलेट करने का. अभी जो फार्मूला है दिस विल बी फॉर finding out the DFT, that is discrete Fourier transform. So discrete Fourier transform, that will be a simplified one. So here n should be varying from 0 to n minus 1. ठीक है, तो जो हमारा इनपुट सीक्वेंस है उसमें सैंपल्स n की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, we will be taking 0 to n minus 1. So formula will be n should be varying from 0 to n minus 1, x of n into ये कैपिटल है w इसको रिप्रेजेंट करते हैं wn टू द पावर kn. ठीक है, wn टू द पावर kn, और वहां पे wn जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाई n. ठीक है, समझ में आया? कुछ सिमिलर फार्मूला है जो हम DTFT के लिए यूज कर रहे थे, बस हम उसको क्या कर दिए, उसको हम फाइनाइट कर दिए. फाइनाइट करने के बाद जो हमें फार्मूला मिलेगा वो वो सिमिलर फार्मूला है. वहां पे जो wn है, this wn, that is called Twiddle factor. This wn is called Twiddle factor. ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, इसको आप एक बार नोट करिएगा. तो कोई भी अगर हम जनरलाइज्ड फंक्शन की तरह से लेके कि एक ब्लैक बॉक्स है, उस ब्लैक बॉक्स में अगर DFT फाइंड आउट करने का सीक्वेंस लगा हुआ है, कोड लगा हुआ है, एक तरीके से वो हार्डवेयर है जो DFT फाइंड आउट करेगा. तो अगर हम x ऑफ n x एज ए वेरिएबल इनपुट देंगे x ऑफ n, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x of n. After DFT we will be getting capital X with the variable k. ठीक है, कैपिटल X of k. ठीक है, so we will close for the today's. Okay, after in the next class we will be taking the example based on DFT calculation. Up to here, if anyone is having any doubt, you can ask. Okay, so anyone is having any doubt, you can ask. Up to here, if you have any doubt or any confusion is there, कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो, अगर इससे पहले, ऐसे मैथमेटिक्स पूरा जो DFT ये आपको DSP है वो मैथमेटिक्स का ही पार्ट है. तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो टर्म्स जो यूज होंगे आगे, वो टर्म्स मैंने बता दिए आपको, जैसे पीरियोडिक सिग्नल है, लिनियर टाइम इनवेरिएंट, ये सब जो फंक्शंस हैं, सिस्टम्स हैं, ये सब आपको फ्रिक्वेंटली यूज होंगी वहाँ पे. ठीक है, आगे के एनालिसिस में. तो अगर अभी जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ अगर आपको ना समझ में आ रहा तो आप उसको ज़रूर एक बार बोल दो. ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है सिग्नल एंड सिस्टम्स आप लोग नहीं पढ़ते हो CS में, तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए. अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं आगे जो टॉपिक दिया हुआ है उससे, तो हो सकता है आपको क्लियरली आप कैच ना कर पाए. ठीक है, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूं, इसलिए, और इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, और वो मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट है, और वो मैथमेटिक्स जो सिंपल है. ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको फार्मूला बस ये पता होना चाहिए कि DFT का फार्मूला, कैलकुलेशन का फार्मूला क्या होता है. बेस्ड ऑन दैट आपको कैलकुलेट कर सकते हो DFT इजीली. ठीक है, और DFT कैलकुलेट करने के बाद कई सारे ऐसे मेथड्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर जो हमारा DFT आया है वो करेक्ट है कि नहीं आया है. ठीक है, तो वो सब हम बाद में देखेंगे. पहले हम हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, वी विल बी टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ दैट ओनली. ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई डाउट है? अदरवाइज वी विल बी क्लोजिंग फॉर टुडेज क्लास. ठीक है, तो किसी को कुछ समझ में आया, मतलब अगर किसी को आया है तो एक बार कुछ हाँ समझ में आया हो तो आगे बढ़ें. ठीक है, फिर तो क्लोज कर रहे हैं आज का. और किसी को कोई डाउट है एक बार आप देखना. मैंने अभी दिया सिंक फंक्शन क्या होता है, तो सिंक फंक्शन अभी आप एक बार चेक कर लेना कि क्या होता है.
और उसमें आपको अगर कोई भी कुछ भी कंफ्यूजन हो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। तो क्लोज कर रहे हैं फिर। आप एक बार गो थ्रू होइए ये टॉपिक पे डीएफटी का। अच्छा टॉपिक है, ठीक है, और इजी भी है, और कोई भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।